Okay, Assalamu alaikum, dear students. So we were talking about the contribution of different scientists regarding the cell. We were talking Sheridan and Shivan. They were- they have they worked on cell theory, and they gave the concept of the cell theory. Not only cell theory, but they also gave their postulates. But Shivan actually worked on another special cells, which are called as the nerve cells, and these nerve cells have axons. You know, if we talk about the nerve cells, the nerve cells, there are the parts of the nerve cell. This is their dendrites. This is whole. It's axons. Okay, this is the soma or cell body. You might be familiar about the neuron or nerve cell. So these nerve cells, there are also two types of the nerve cells. One are the myelinated nerve cells and unmyelinated or non-myelinated. Myelin beta हिकिड़ी sheath हूंदी आहे, there is a sheath, myelin sheath, which help the neurons to transmit their signals from one neuron to another neuron. See, one neuron is actually receives signals from other neurons and transmit it to another through the axons. So axon actually it is covered with a sheath which is called as a myelin, and that myelin is made up of uh, special types of cells which are called Schwann cells or neurolima cells. These cells were discovered by Mr. Schwann. That's why they are so named. Okay, so they also have discovered, or they also found it uh, that cell has three major parts: cell membrane, nucleus, cytoplasm, even an additional membrane, that is cell wall. Means Sheridan and Shivan both were agreed and found it that cell may be consist on three major parts. यही पार्ट्स भी पर मुश्तमिल होता है, और उन सेल्स के जो मखसूस हिस्से हैं उनको हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहते हैं. सो आफ्टर ऑल वी हैव टू डिस्कस रुडोल्फ विर्चो. Rudolf Virchow, it is another scientist who also participated in cell theory. Actually, Mr. Sheridan and Shivan, Sheridan and Shivan की अगर बात करें तो both were agreed that cell is a de novo structure. Cell is a de novo structure. De novo का मतलब है which begins from, this is Latin word which means expression that जो चीज नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हो उसको हम de novo कहते हैं. So it means Sheridan and Shivan were agreed, both were agreed कि cell is a de novo structure. और ये नहीं कहा कि सेल से ही अराइज होता है. आफ्टर ऑल इन 1855 में किसने एंट्री मारी? मिस्टर रुडोल्फ विर्चो ने, एंड ही इज द पैथोलॉजिस्ट, and he gave his observation and added that observation into the cell theory and become the third point of cell theory, that cells arised from pre-existing cells. Okay, cells arise from pre-existing cells. Those words or sentence were used by omnis cellae cellula. Okay, cellula, a cellula. This is actually sentence, which means that cell arise from pre-existing cell. It means life come from life. So this third point become the part of cell theory. In this way, Mr. Rudolf Virchow, the pathologist, took part in cell theory. Actually, अगर हम बात करें कि this was not a view, a new idea of Mr. Robert, no, Mr. Rudolf Virchow, but that was the actual concept or idea of Mr. Robert Remek. ये असल में ये उसका आइडिया था
लेकिन because he published the first in 1855, that's why now it is named with Mr. Robert Virtue. क्योंकि ये पहले जो काम था ये किसका था? मिस्टर रमेक का था, और उसने कहा था कि सेल अराइज्ड फ्रॉम सेल। जैसे आपको पता होगा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस थ्योरी कि लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी अबायोजेनेसिस थ्योरी और बायोजेनेसिस थ्योरी। लेकिन आफ्टर द आइडिया ऑफ मिस्टर रॉबर्ट विर्चो और रॉबर्ट मॉक, तो क्या हुआ, बाद में वो चेंज हो गया आइडिया, यानी इसके बाद जो अबायोजेनेसिस थ्योरी है उसको कम जो है वो सब मिली, एंड दे सेड कि सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी। ऐसा नहीं है कि एक सेल प्रोड्यूस हो नॉन लिविंग थिंग से या एक नॉन लिविंग मटेरियल से। सेल इज नॉट अ de novo structure. Cell arised only from other cell. Okay. Furthermore, Rudolf Virchow actually also given the modern concept of pathological process, keeping in view the cell theory. What he said actually, the effects of disease in the organs and tissues of the body. Yani on the basis of cell theory, he gave the concept related to the pathological process. He said diseases are related to the organs or tissues, or even he more emphasized on that diseases arose not in organs or tissue but in cell. जो डिजीजेस होती हैं उनका डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो कहां पर होता है? सेल्स पर होता है। एंड दिस इज द रीजन के cells become sometimes damaged and disease actually distributes, or it may be fatal only क्योंकि जो डिजीज है वो कहां पर अराइज होती है, जहां कहां तक पहुंचती है? सेलुलर लेवल तक। ये किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने, क्योंकि ये असल में पैथोलॉजिस्ट था। पैथोलॉजी यू नो स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड इट्स ओरिजिन। So let me conclude regarding the Rudolf Virchow. Rudolf Virchow gave the concept related to cell, that cell arised or formed from other cell, not from non-living material or non-living object. And he says this, the disease is mostly related to the cells. जो भी diseases होती हैं वो cells के अंदर penetrate करती हैं या cells level तक पहुंचती हैं, ना कि organ या tissue level तक। Though there is another concept कि tissue level तक जाती है। After all, another scientist, Mr. Louis Pasteur, ये मशहूर साइंटिस्ट है और इससे रिलेटेड एक प्रोसेस भी इसने दिया था, इसके नाम से ही है पास्चराइजेशन। हीटिंग द मिल्क किल द बैक्टीरिया, और उसको मिल्क को हम बहुत देर तक रख सकते हैं सही और सलामत, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट दिया बॉइलिंग का, पास्चराइजेशन का, जिसको कहा जाता है पास्चराइजेशन। वेल, what was the concept of Mr. Louis Pasteur regarding the cell? Make sure कि the concept of Mr. Louis Pasteur was related to the microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था, और माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है? सिंगल सेल है, तो लिहाजा इनका सेल के मतलब क्यों कॉन्सेप्ट था। और एक्चुअली ल्यूइस पास्चर promote the hypothesis of Mr. Rudolf Virchow के cells arised from other cells, या life arise from life. It means he supported the biogenesis theory. कौन? Mr. Louis Pasteur. उसने practicals किए in a way that he took a solution, he made a solution which contains meat and other organic material in it,
यानी वो ऑर्गेनिक मैटर सॉल्यूट्स इसने लिए जिसमें मीट भी था, वाटर, और उसको उसने हीट किया। जब हीट किया, मेक श्योर कि हीट उसने किस में किया, दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क। ये क्या है बेटा, कॉनिकल फ्लास्क। then he heated it and make sure this conical flask is contain the ace-shaped neck, ace-shaped tube or neck. There is a great importance of this ace-shaped tube or neck. इसने हीट किया उस सॉल्यूशन को, फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। he left it and let it cool, ठंडा हो गया। and after all he observed that there is no microorganism in it or bacteria present in it। क्यों इसने ऐसा किया? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था कि कुछ साइंटिस्ट ऐसा कह रहे थे कि लाइफ अराइज्ड फ्रॉम नॉन लाइफ और यानी नॉन लिविंग मैटर्स। लाइफ जो है नॉन लिविंग मैटर से अराइज होती है, इसीलिए अगर उन्होंने कुछ मीट वगैरह उसको कट करने की ऑर्गेनिजम्स को किल करने के बाद छोड़ दिया, तो उसके बाद कुछ देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर डेवलप हो रहे हैं। उसको ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है। इसमें इसने क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरा तरीका इसने क्या अपनाया, सेम सॉल्यूशन हीटेड, लेट इट, अच्छा उसके बाद उसने क्या किया, हीट करने के बाद उसकी ये एस शेप्ड नेक जो है यहाँ से तोड़ दी, ब्रेक्ड इट और रिमूव्ड इट, एंड कुछ देर के बाद इसने ऑब्जर्व किया देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट और बैक्टीरिया इन इट। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें क्या किया, ही अगेन अप्लाइड द सेम प्रोसीजर, हीटेड द सॉल्यूशन, और उसके बाद इसने फ्लास्क को साइड वेव में कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, और ये जो सॉल्यूशन है वो हीट करने के बाद कहाँ तक पहुंचा, ये इस ट्यूब के अंदर। मेक श्योर कि ट्यूब यहाँ से खुली हुई है बेटा, दिस इज ओपन इट। ठीक है, यहाँ तक दोनों तरीके से किया जाता है, या तो फ्रॉम ओपन इट या फिर क्लोज करके भी किया जा सकता है। पर यहाँ पर हम फिलहाल इसको कंसीडर कर देंगे इट इज क्लोज। सो आफ्टर ऑल क्या आप देखिए, यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पर थे। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, एटमॉस्फेयर, सॉइल, wherever the life is possible, जहाँ कहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही इसने इसको तोड़ दिया, ये खुल गया, तो हवा में जो हवा इसके अंदर, एयर इज गेट इन टच विद दिस सॉल्यूशन, एंड देन उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ तक पहुँच गए, एंड देन दे रिप्रोड्यूस। तो फिर क्या हुआ, ये अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो ये असल में सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ नॉन लिविंग मैटर। लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग मैटर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ। मकसद क्या है, मकसद ये है कि एयर में जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो अंदर आए और उसी में से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, सेल कम्स फ्रॉम सेल, सेल डजंट कम फ्रॉम नॉन सेल्स और नॉन लिविंग मैटर। इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और इसमें भी कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से खुली हुई है ये ट्यूब, और फिर जब इसको हमने टिल्ट किया या साइड वे किया, तो उसके बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब बेटा, सी यहाँ पर ये खुला हुआ है, सपोज एयर आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है, ओके, उसके बाद यहाँ आ रही है, यहाँ टकराई, यानी सीधा ऐसे नहीं है कि यहाँ तक पहुंचे, जैसे यहाँ टकरा रही है उसके बाद यहाँ टकरा रही है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में होंगे वो दे गेट इन स्टिक्ड विद द वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब, बाकी फ्रेश एयर यहाँ तक पहुंचेगी, तो लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप भी नहीं हुए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसने यहाँ तक किया, क्योंकि यहाँ पर अटैच थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके साथ अटैच हो गए और फिर वो ग्रो होना शुरू कर दिया।
It means that Louis Pasteur want to say that life arised from life, cells arised from cell. ओके ऐसा नहीं है कि सेल जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगा या जैसे अबायोजेनेसिस थ्योरी या अबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट कह रहा था. आई होप you understand it. After all, beta, the last scientist, according to Arezzo, the contribution of scientist in the cell discovery, that was Mr. Weizmann. Actually, Weizmann, whose complete name is August Frederick Leopold Weizmann, he studied the traits of organism, developed and evolved variety of organism. He worked on the properties of the cells. क्या मतलब? He want to say he gave the concept of a theory which is called as germinal continuity theory or theory of continuity of germplasm. Okay, theory of continuity of germplasm या theory of germinal continuity theory. इसका मतलब क्या है? ये इस theory का मतलब क्या बताना चाह रहा है, क्या postulate करना चाह रहा है? एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि cells, the properties of one generation are from parents to offspring only transfers through germ cells, not from body cells. germ cells यानी sperm या egg के थ्रू properties from parents to offspring transfer होती है. No other ways. ये कहना चाह रहा है. germ cells के थ्रू ट्रांसफर होती है. ऐसा नहीं है जैसे we are like our parents. हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट्स से मिल रही है. हमारी जो प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से मिली वो हमें विरासत में मिली, इनहेरिटेंस. कैसे ट्रांसफर है? स्पर्म एंड एग सेल के थ्रू. ठीक है, तो उनमें कैसे, उसमें भी इस तरीके से आई. ये कहना चाह रहा है. और ये कॉन्सेप्ट भी इसने दिया था पहले. ऐसा नहीं है कि जो सोमेटिक सेल यानी बॉडी सेल, फॉर सपोज जो हमारे पेरेंट्स में जो प्रॉपर्टीज नहीं थी, जो उनके पेरेंट्स से नहीं आई थी और माहौल से उन्होंने ली, फॉर सपोज उनके बॉडी में कोई डैमेज आ गया या कोई स्किन डैमेज हो गई, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो भी उनकी भी स्किन डैमेज हुई होगी जब वो प्रोड्यूस होंगे. ऐसा नहीं है. सोमेटिक सेल यानी बॉडी सेल. ठीक है, तो बॉडी सेल में जो तब्दीली आ गई वो आगे ट्रांसफर नहीं होनी. ये कहना चाह रहा है कौन? मिस्टर वीजमैन. और उसका एग्जांपल उसने ऐसे दिया कि एग्जांपल he gave an example in a way that many people, especially the women, they bore their nose and ears for the jewelry purpose. ये नोज या ईयर में वो बोरिंग करवाती है यानी होल्स करवाती हैं और बहुत शुरू से करवा रहे हैं ताकि इनके ज्वेलरी पर्पस जो है वो यूज कर सके. लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि व्हेन दे गिव अनदर ऑफस्प्रिंग एंड दैट इज इंक्लूडिंग दोज होल्स. नो. सो जो चेंजेस आती हैं वो जर्म सेल्स में आती हैं और फिर आगे ट्रांसफर होती हैं. सो दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ मिस्टर Weizmann. I hope you got it. If you have a question regarding this, you may ask. You can raise your hand. बेटा इसके मुतालिक अगर आपको कोई सवाल है, you may ask. No? Okay, बेटा. Another topic is we are going to discuss, that is the concept of resolution and magnification, or resolution versus magnification of microscope. This is a very important topic and we need to focus on it, and we have to differentiate in a way that we can apply in our instruments, especially in microscope,
So resolution versus magnification of microscope. Make sure in the field of microscopy, there are two concepts which usually many people often think of a one concept. ये प्रॉब्लम होती है ताकि हम ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, बट there are the very more differences regarding the magnification and resolution. मीन्स इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं? माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन एंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन आर इन सिंपल वर्ड्स resolution and magnification, but it is usually used in the field of microscopy. So microscopy को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपी क्या है? See, actually it is a science of investigation, or it is a science of investigating small objects by using such type of instrument as microscope. This is known as microscopy. So it is the science of investigating the small objects by using the microscope or microscope-like instruments. So let's try to differentiate these two words. This overall slide shows a very basic introduction regarding these both terms. From technical point of view, microscope resolution actually is a quantified concept that is defined by the numerical aperture NA, जिसको हम क्वांटिफाइड करते हैं या जिसको हम मोर आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू न्यूमेरिकल अपर्चर, बाय गिविंग द न्यूमेरिकल अपर्चर। और ये क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर? रेटिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट लेंस। कि फॉर सपोज भाई एक ऑब्जेक्ट लेंस है या एक लेंस है, उसकी अगर मैं कहूँ कि न्यूमेरिकल अपर्चर है 0.12 numerical aperture, अगर मैं कहूँ कि this is the lens and its numerical aperture is 0.12, it means I am talking about the resolution. आपको समझ जाना चाहिए, अगर मैं नाम ना भी लूं, सिर्फ ये कहूं कि ये लेंस है और इसकी न्यूमेरिकल अपर्चर ये है, तो you could understand कि this means that resolution of the lens. न्यूमेरिकल अपर्चर, अगर इसको और हम डिफाइन करें न्यूमेरिकल अपर्चर को, it is a number that expresses the ability of lens to resolve fine details in the object being observed. न्यूमेरिकल अपर्चर बेटा क्या है? एक्चुअली ये ऐसा नंबर है जिसके तहत, यानी एक ऐसी एबिलिटी है लेंस की जिसके तहत हम डिटेल किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व कर सकते हैं, मोर क्लियर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर उतना ज्यादा इमेज क्लियर, ठीक है, रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन पावर ज्यादा होगा। ये तो था वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज सिंपली हाउ मच एन इमेज इज इनलार्ज। इमेज को कैसे इनलार्ज किया जा सकता है, इमेज को इनलार्ज करना, ये मैग्निफिकेशन है। कैसे? I will also explain it in more detail, both magnification and resolution. But because this slide is only related with the introduction of our SLO, कि resolution को हम कैसे करते हैं और मैग्निफिकेशन को हम कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं या किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। So that was all about these two terms. Okay, so see, you could see here in this object, in this figure,
I hope you could see on your screen. ये जो डायग्राम है या ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। आई होप यू आर गेटिंग कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज माइक्रोस्कोप में कौन से होते हैं। यू आर फैमिलियर अबाउट, यू नो दिस। अगर नहीं भी अभी याद आ रहा तो आप इसको देखें, ये माइक्रोस्कोप की फिगर है। ये ऑक्यूलर लेंसेज हैं या जिसको हम आई पीस कहते हैं। और ये जो है ये 4 या 3 भी होते हैं। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं।